understand what you have for us this morning. Thank you, Lord Jesus. May we spend Jesus' most precious and holy name. Amen. Man. Man. Okay. So there's a verse in the Bible in Ecclesiastes 3 verse 11 which says, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. और एक वचन है बाइबल में, सबोपदेशक 3रा अध्याय वचन 11, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया Okay, है। so God has put eternity in our hearts. तो परमेश्वर ने हमारे हृदय में अनंत काल डाला है। Okay, whether you're a Christian or you're not a Christian, God has put eternity in our hearts. आप मसीह है या नहीं है, परमेश्वर ने हमारे हृदय में अनंत काल डाला है। Okay, so before we got to know Jesus as our Lord and Savior, we didn't know how to attain it. We didn't know what it exactly was, what it meant, but we had eternity in our hearts. और इससे पहले कि हम यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में जानते, हमें पता नहीं था उसे कैसे हासिल करना है, लेकिन तब भी उसने परमेश्वर ने हमारे हृदय में अनंत काल डाला था। So what is eternity? तो अनंत काल क्या है? Eternity means forever. अनंत काल का अर्थ ये है हमेशा के लिए। Okay, so do we all know what eternity means? तो क्या हम सब जानते हैं कि अनंत काल का क्या अर्थ है? But the problem is we can understand eternity conceptually. लेकिन समस्या ये है कि अनंत काल को हम धारणा के रूप में समझ सकते हैं। But I don't think anyone who's being fully honest with themselves can say with full conviction, I understand eternity. लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई पूरी तरह से ईमानदारी से और पूरी तरह से समझ कर ये कह सकता है कि हाँ, मुझे अनंत काल क्या है वो पता है। And I want to be very honest with you, I don't understand eternity. और मैं सच्चाई से आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी पूरी तरह से नहीं समझता It हूँ, is too big an idea for you and for me. क्योंकि ये बहुत बड़ी ऐसी कल्पना है आपके लिए और मेरे लिए। Okay, this is because you and I as human beings, we have been hardwired to think in terms of time. क्योंकि आपको और मुझे, मनुष्य जाति को इस तरह से बनाया गया है कि हम समय के बराबर सोचते हैं बातों को। Okay, all of us, including these things that we have, this tablet that I have, this mic, okay, people, Franco, me, we all are limited by time. और हम सब कुछ, आप, मैं और ये जो चीजें हमारे पास है या फ्रैंको है, हम सब जो है वो समय से नियमित है। Everything has to come to an end. हर एक चीज का अंत होना ही है। Everything. सब कुछ। Okay, time has its clutches placed firmly on creation, but still the heart of man seeks eternity. और समय ने मनुष्य को पकड़ के रखा है, फिर भी मनुष्य का हृदय जो है वो अनंत काल के पीछे भागता है। Because right at creation, God put eternity in our hearts. क्योंकि जब निर्माण हुआ था तभी से ही परमेश्वर ने हमारे हृदय में Okay, अनंत काल डाला है। James 4 verse 14 says, we can't predict tomorrow, but the one thing I know for sure with guarantee, and you may hate me for saying it, is that one day you and I, we are going to die. और यहोदा के 4 अध्याय 14. वचन 14 में लिखा है, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है कि है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। Okay, it is inevitable, you and I, one day we are going to die. और ये होना ही है कि एक दिन आपको और मुझे मरना है। Any one of us here who thinks that they're not going to die? क्या कोई ऐसा है यहाँ पर जो सोचता है कि वो नहीं मरेंगे? If yes, please let me know how. Okay. और अगर हाँ है तो मुझे कृपया बताइए कैसे। Okay, one of the big questions of life that people struggle with is what happens once we die? और एक प्रश्न है लोगों के पास जिससे वो संघर्ष करते हैं, वो ये है कि जब हम मर जाएंगे तो क्या होगा। And you don't understand, this is a very loaded question. और आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है। The implications of this question dictates the life you're going to live on this earth. और इस प्रश्न की व्याख्या जो है वो जो जीवन आप पृथ्वी पर बिताएंगे उसको दर्शाएगा। So what happens once we die? तो एक बार हम मर जाएंगे तो क्या होगा? The Bible tells us in John 3 verse 16, for God so loved the world that he gave his only son so that whoever believes in him shall not perish
but have eternal life. और बाइबल कहता है यूहन्ना के 3 अध्याय वचन 16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को भेज दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पा सके। The Bible says when we die, we go to one of two places. और बाइबल कहता है कि जब हम मर जाते हैं तो दो में से एक जगह पर जाते हैं, We either go to heaven या तो हम स्वर्ग जाएंगे or we go to या तो hell. हम नरक जाएंगे। Okay, so there is no in between. तो बीच की कोई चीज नहीं है There is no reincarnation. और पूर्ण जन्म होना ऐसी कोई बात Okay, नहीं है। there is no once you die, your soul becomes one with the energy that floats around in the cosmos. All of that is rubbish. और आप मर जाएंगे, आपके प्राण निकल के, और ऐसा कुछ होगा नहीं। Okay, there is no nothingness. और कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। There is heaven or there is hell. That's it. या तो स्वर्ग है या नरक है, दोनों में से एक चीज है, बस इतना ही है। Heaven is a good place. और स्वर्ग अच्छी जगह है। It's a place, the Bible says it is a place without pain and without suffering. और बाइबल कहता है कि वो ऐसी जगह है जहाँ पर कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा It's a नहीं है, place of infinite joy. It's a place of peace. और वहां पर बड़ा आनंद और शांति है, ऐसी जगह है वो। It's a place where God, the creator of all things, resides. और वो ऐसी जगह है कि परमेश्वर जिसने सभी चीजों को रचा है वो वहां पर निवास करता है। Heaven is a good place. और स्वर्ग अच्छी जगह है, It's a place you and I want to go to. ऐसी जगह है जहां पर आप और मैं जाना चाहेंगे। But hell is not a good place. लेकिन नरक अच्छी जगह नहीं है। Okay, imagine Andheri East MIDC multiplied by 10,000 times and it is still not as bad as hell is. और Okay, hell is not a bad, और hell is not a good place to go to. नरक मैं बताना चाहता हूँ वो अच्छी जगह नहीं है जहाँ कोई जाना चाहेगा। Hell is where pain and suffering and torment will go on forever and ever and ever. और नरक ऐसी जगह है जहाँ पर दर्द, पीड़ा, ये सारी चीजें हमेशा हमेशा के लिए चलती रहेगी। Where in heaven there is eternal joy, in hell there is eternal suffering. और जहाँ पर स्वर्ग में अनंत काल के लिए आनंद है, नरक में अनंत काल के लिए पीड़ा सहना है। John 3 verse 16 says, whoever believes in him, और यूहन्ना के 3 अध्याय वचन 16 में लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा। whoever, there is no exception. जो कोई छूटा नहीं है उसमें, सभी, From the best to the worst, सबसे उत्तम से सबसे बुरा, from the rich to the poor, सबसे अमीर से सबसे गरीब, from any nationality, चाहे वो कहाँ से भी आते हो, no किसी भी matter राज्य what से, you've done, no matter where you are, if you believe in Jesus Christ, you will be going to heaven. चाहे आपने जो कुछ भी किया हो, आपका अतीत जो कुछ भी क्यों ना हो, यदि आप यीशु पर विश्वास करेंगे तो आपके पास अनंत जीवन होगा। Romans 10 verse 10 says, if you believe in your heart and you confess with your heart that Jesus is Lord, you will be saved. और रोमियो के 10वें अध्याय वचन 10 में लिखा है, यदि तुम हृदय में विश्वास करोगे और हृदय में कबूली करोगे कि यीशु प्रभु है तो तुम्हारा उद्धार होगा। Okay? Confess with your mouth. You believe in your heart and confess with your heart. Okay? If you have believed in your heart and if you've confessed with your heart, then your eternity is in heaven. अगर तुमने हृदय में विश्वास किया है और मुंह से कबूली की है तो अनंत काल तुम्हारा है। If you are here and you haven't done that, you should do it. और अगर तुम यहाँ पर हो और तुमने वो नहीं किया है तो तुम्हें वो करना चाहिए। Okay? Because if you do that, your eternity is in heaven. क्योंकि यदि तुम वो करोगे तो तुम्हारा अनंत काल स्वर्ग में होगा। Okay? But we think of eternal life only as the life to come. लेकिन हम अनंत काल के बारे में ऐसा सोचते हैं कि बस वो आने वाला जीवन है। Okay, but that's just half the truth. लेकिन ये आधी सच्चाई है। Yes, we have eternal life once we die. हाँ, हमारा अनंत जीवन होगा एक बार जब हम मर जाएंगे। But here is the good news. लेकिन एक अच्छी खबर है यहाँ पर, Eternal life is something that you and I can experience even now. अनंत काल का जीवन ऐसा है कि जो आप और मैं अभी इसी समय उसका अनुभव कर We सकते may हैं। not see it in its fullness, हाँ, उसे पूर्णता में हम नहीं देख but पाएंगे, we do experience degrees of it. लेकिन उसके कुछ स्तर का अनुभव हम कर सकते हैं You know, यहाँ when पर। people get set free, आप जानते हैं जब लोग छुड़ाए जाते हैं, when people's lives get changed, जब लोगों का जीवन परिवर्तन हो when जाता you see है, miracles and healings, that is the life of eternity. जब आप चमत्कार देखते हैं, चंगाई देखते हैं, तो वो अनंत काल का जीवन है। So you and I, we don't need to wait for death for it to start, because
We're already living in it. तो आपको और मुझे मरने के लिए रुकने की जरूरत नहीं है कि उसकी शुरुआत हो, क्योंकि हम वो अभी जी सकते हैं। It began the day you and I put our faith in Jesus Christ. और उसकी शुरुआत तब हुई जब आपने और मैंने अपना विश्वास यीशु मसीह में डाला। Eternal life is our current possession. और अनंत काल का जीवन वो हमारा अभी की हमारी संपत्ति है। Okay, and I'm not making this up. और मैं इसे बनाकर नहीं कह John रहा 3 verse 36 says, whoever believes in the Son has eternal life. यूहन्ना के 3 अध्याय वचन 36 में लिखा है कि जो कोई पुत्र पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन Okay, है। so the word here is has, तो यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है उसके पास है, not will have. ऐसा नहीं उसके पास होगा। If he does this, he will have. No, no, he has eternal life. उसने ये किया तो उसके पास होगा, नहीं ऐसा नहीं, उसके पास अनंत जीवन है। John 5 verse 24 and John 6 verse 24, Jesus says the same thing. He says, whoever believes has eternal life. यूहन्ना 5:24 और यूहन्ना 6:24 में लिखा है, यीशु यहाँ पर पक्का करता है कि जो कोई विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। The focus of eternal life is not only on the future, but is also on our current. और अनंत काल का लक्ष्य केवल भविष्य पे नहीं लेकिन हमारे वर्तमान पर भी है। Our eternal life has already begun. और हमारा अनंत जीवन की शुरुआत हो चुकी है। And the promises and the benefits that the Bible talks about for you and for me of eternal life, they are there for us to take. और जो वादे और जो लाभ जिसके बारे में बाइबल बात करती है अनंत काल को लेकर, वो अभी हमारे लिए उपलब्ध है जिसे हम ले सकते हैं। So now that we've established that, तो अभी जैसे हमने ये सब कुछ स्थापित कर दिया है, what does this mean? तो इसका क्या अर्थ हुआ? Now that we have eternity sorted, is that it? तो अभी अनंत काल सब ठीक ठीक हो गया तो क्या बस हो गया? No, because if we truly believe in Jesus Christ, we will live our lives that way. क्योंकि अगर हम सच्चाई से यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन भी हम वैसे जिएंगे, We will walk the talk. और जो हम बोलते हैं वैसी ही चाल चलेंगे। Okay? Our actions reflect the eternity we are going to. और हमारे जो काम है, जिस अनंत काल की ओर हम जा रहे हैं, वो काम उसे प्रदर्शित करेंगे। Matthew 7 verse 17 to 20 says, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Okay, a good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit, it is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit, you will recognize और them. मत्ती 7 वचन 17 से 20 में लिखा है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। वचन 19, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। Okay. The outworking of the eternity we are going to is seen in everything that you and I do. और अनंत काल का पूरा होना जहां पर हम और मैं और आप जाने वाले हैं, वो हम जो सारे काम करते हैं उसमें दिखाई देता है। So how does one live in the light of eternity? तो अनंत काल की रोशनी में कोई अपना जीवन कैसे जी सकता है? Okay, the eternity, as I said, the eternity we are going through, it reflects in the life we live on earth. तो अनंत काल जहां पर हम जा रहे हैं, वो जीवन जो हम पृथ्वी पर जीते हैं उसमें दिखाई देता है। Okay, it permeates through every fiber and every being of us. वो हमारे पूरे शरीर में, हमारे सभी जीव में वह दिखाई देता है। It doesn't mean we are perfect. उसका अर्थ ये नहीं कि हम सिद्ध है। Okay, it doesn't mean you and I don't mess up. उसका अर्थ ये नहीं कि आप और मैं गलती नहीं But करेंगे। it means we consciously try and live life the way Jesus has asked us. उसका अर्थ ये है कि हम विवेकपूर्ण ऐसा जीवन जीने की कोशिश करते हैं जो यीशु चाहता है कि हम जिए। It means we live life in the light of eternity. उसका Yeah? मतलब ये है कि हम अनंत काल की रोशनी में जीवन जीते So हैं। point number 1 of how we live life in the life of eternity is that we live a life of relationship with God. तो पहला मुद्दा कि हम अनंत काल की रोशनी में कैसे जीते हैं, वो ये है कि हम ऐसा जीवन जीते हैं कि हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता हो। John 17 verse 3 says, and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. और यूहन्ना के
17वें अध्याय वचन 3 में लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। Eternal life is knowing God. और अनंत काल का जीवन ये है कि परमेश्वर को जान लेना। Sometimes we can know about God rather than know God. कभी कभी हम परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं, ना कि हम परमेश्वर को जाने। Now, there's a difference. ये दोनों बातें अलग है। Do we know God? क्या हम परमेश्वर को Do जानते we हैं? know Him intimately? क्या हम उसे करीब से जानते हैं? In Matthew 16, Jesus asked the disciples, "Who do people say I am?" और मत्ती के 16वां अध्याय में यीशु अपने चेलों से पूछता है, लोग क्या कहते हैं, मैं कौन हूँ? And there are different answers. और वहां पर अलग अलग प्रकार के And जवाब sometimes दिए as गए। Christians we can be like this. और कभी कभी हम मसीह लोग भी ऐसे हो सकते हैं। Our answers about God are very surface level. और बस जो परमेश्वर को लेकर हमारे जो उत्तर है वो ऊपरी ऊपरी है। Okay, we just parrot things we have heard here and there. On Sunday we have heard someone pray or the pastor said something. We just go and we parrot those things around. और बस हमने किसी को ये प्रार्थना करते हुए सुना, या कलीसिया में सुना, या पास्टर को कैसे कहते हुए सुना, तो बस वो चीजें हम रट लेते हैं। How do I know that? वो मुझे कैसे पता है? Because I have done it. क्योंकि मैंने वो किया है। Okay. We sometimes live life with a borrowed understanding of God. और कभी कभी उधार को ली हुई समझ के जैसे हम जीवन को, या वैसे हम परमेश्वर को समझते हैं, That's not what He wants. और परमेश्वर वैसा नहीं है। So Jesus, when He's talking to the disciples, He asks the question again. He's like, okay, that is what people say. Who do you say I am? और यीशु जब वो चेलों से बात करता है तो कहता है, हाँ, लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं कि मैं ये हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? The others, as they are thinking, they're just trying to formulate their answers. Peter gets up and he says, Jesus, you are the Messiah, the Son of the living God. और दूसरे जैसे सोच रहे हैं कि क्या जवाब दे, पतरस खड़ा हो जाता है और कहता है, यीशु तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है। Brothers and sisters, Peter knew Jesus. भाई और बहनों, पतरस यीशु को जानता था। Peter's relationship and knowledge of God reflected in his language about God. और पतरस का परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था और समझ थी, उसके भाषा में वो दिखाई देता था। So the more time we spend with Jesus in worship, in word and in prayer, the more He reveals Himself to us. और जितना ज्यादा समय हम परमेश्वर के साथ वचन में, आराधना में, प्रार्थना में बिताते हैं, उतना ज्यादा वो अपने आप को हमें प्रकट करता है। And you can never know everything about God. और हम कभी भी परमेश्वर के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते Just हैं। like eternity is vast and it is forever and it is unending, there is no end to knowing our God. और जैसे अनंत काल इतनी बड़ी है जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कभी अंत नहीं होता, वैसे परमेश्वर को भी समझना या जानने का कभी अंत नहीं होता, उसकी कोई सीमा नहीं है। The creator of eternity supersedes eternity. और अनंत काल को बनाने वाला जो है वो अनंत काल से भी बहुत बड़ा है। He is bigger than it. वो उससे बहुत बड़ा है। Even eternity isn't enough for us to get to know Him fully. और अनंत काल भी हमारे लिए काफी नहीं है कि हम पूरी तरह से उसे समझ सके। So a good place to start to get to know Him is right now. तो एक अच्छा स्थान जहां पर हम उसे जानने की शुरुआत कर सकते हैं वो यहाँ है, यही है। Paul's knowledge and relationship are reflected in the language, in his language about और God. पौलुस का जो समझ है या ज्ञान है परमेश्वर को लेकर, वो उसकी जो भाषा है उसमें दिखाई देता है। In Philippians 3 verse 10, he says, I want to know Christ. Yes, I want to know the power of His resurrection and participate in His sufferings, becoming like Him in His death, so somehow attaining the resurrection from the dead. और फिलिपियों के 3 अध्याय वचन 10 में लिखा है, और मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। Paul knew Christ and wanted to be more and more like Him. और पौलुस यीशु को जानता था और भी यीशु की तरह बनना चाहता था। Paul wanted to live in the power of His resurrection. और वह यीशु के पुनरुद्धार के सामर्थ में जीवन जीना Paul चाहता wanted था। to continuously live in the light of eternity. और वो लगातार अनंत काल की रोशनी में जीवन जीना चाहता था। His language, his lifestyle reflected that. और उसकी जो भाषा थी, उसकी जो जीवन शैली थी, उसमें वो प्रदर्शित या दिखाई दे रहा था। Now, relationship with God is supposed to be constant. और परमेश्वर के साथ रिश्ता जो है वो लगातार होना चाहिए। It's not a one-off thing.
वो एक बार ही होना चाहिए ऐसी चीज नहीं We है। need to be in regular communication with God. हमें परमेश्वर के साथ लगातार बातचीत करनी चाहिए Okay, and this is very important for communication. और बातचीत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। We need to speak to Him हमें उससे बात करना है and we need to allow Him to speak to us. और उसे अनुमति देनी है कि वो हमारे साथ बात करे। Okay, many times we just speak to Him, okay, God, I want this, I want that, and yesterday this happened. Can you change that? Okay, fine, thank you, bye, amen. Yeah. कभी कभी ऐसा है कि केवल हम परमेश्वर से बात करते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, कल ये हुआ, क्या तुम ठीक कर सकते हो? हाँ, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, बस आमेन, But थैंक यू, it's बस important खत्म। it's important to listen. लेकिन महत्वपूर्ण है कि आप सुने भी। We can't get lazy about it. इसके बारे में हम आलसी नहीं हो सकते This हैं should be our top priority. और ये हमारी सब प्राथमिकता होनी चाहिए। I want to ask you a question. If Jesus was to stand here today and ask you, who do you say I am? और मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि यदि यीशु यहाँ पर खड़े होते और कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, अगर ये प्रश्न पूछते तो Will you be able to give him an answer that comes from the bottom of your heart, that is genuine? तो क्या आप उसे ऐसा जवाब दे सकेंगे जो सच्चाई से आए, ईमानदारी से और आपके हृदय की गहराई से आए? Or will it just be lip service? या बस आप कुछ रटा हुआ कहेंगे या बस बोलने के लिए बोलेंगे? 1 Samuel 15 verse 22 and Psalms 15 verse 16 say, if you read these verses, it says God doesn't delight in lip service. और 1 शमूएल की 15वें अध्याय वचन 22 और भजन संगीता 51:16 में लिखा है कि परमेश्वर जो मुंह की बातें हैं उसमें आनंद नहीं लेता है। He doesn't delight in people doing things for the sake of doing things. और वो बस लोग करने के लिए चीजें करते हैं, उसमें वह खुश नहीं होता है। God doesn't want you and him to be an acquaintance. और बस जान पहचान है हमारी, वैसे परमेश्वर नहीं चाहता कि वैसा रिश्ता हो, He wants a relationship. लेकिन वो चाहता है कि एक रिश्ता हो। Living in the light of eternity means having a regular and constant relationship with और God. अनंत काल की रोशनी में जीवन जीना, उसका ये अर्थ है कि आपका लगातार परमेश्वर के साथ में रिश्ता है। The second point, दूसरी बात, we make the most of the time we have. और जो समय हमारे पास है उसका हम पूरा उपयोग करें। Ephesians 5 verse 15 to 17 says, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. और इफिसियों के 5वें अध्याय वचन 15 से 17 में लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। Time is precious. समय कीमती है। We don't know how much time we have left. हमें पता नहीं कि हमारे पास कितना समय रह गया है। Every single second counts. और हर एक सेकंड जो है वो मूल्यवान है। See, and listen, brothers and sisters, I'm preaching this to myself. और Okay? सुनो भाई और बहनों, ये प्रचार मैं अपने आप से कर रहा हूँ। I doubt there is anyone over here who can waste time as well as I can. और मुझे संकोच है कि क्या मुझसे बेहतर कोई यहाँ पर समय की बर्बादी कर सकता है। Trust me, I can sit for weeks and do nothing. और मेरा भरोसा करो, मैं हफ्ते हफ्ते बैठा रह सकता हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। Huh? I used to, Franco. Where is the grace? But it is true. लेकिन ये सच है। Okay, if I didn't need to go to the toilet, I could have probably just lied down on my bed the whole day and I would have enjoyed it. और अगर मुझे टॉयलेट जाने की जरूरत नहीं पड़ती तो बस बेड पर पूरा दिन लेटता और मैं मजे लेता ऐसे। Wasting time is my superpower. और टाइम वेस्ट करना ये मेरा सुपर पावर है। But then I've gotten convicted of it. लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ, इस बात का एहसास दिलाया गया। Okay. And obviously I've exaggerated a bit. I work because घर कैसे चलेगा नहीं तो, right? हाँ, थोड़ा बड़ा चढ़ा के मैंने बोला है, मैं काम भी करता हूँ, नहीं तो मेरा घर कैसे चलता। Okay. But one day I just got convicted of it. लेकिन एक दिन ऐसा आया कि इस बात का मुझे एहसास हो गया। Am I really using my time wisely? क्या मैं सच में मेरे समय का सही उपयोग कर Am I रहा हूँ? using my time properly? क्या मैं समय का सही उपयोग कर रहा हूँ? I'm way better at managing my time today than I was, a few years back. जैसा मैं पहले था
कुछ साल पहले जैसे मैं समय का इस्तेमाल करता था उससे मैं अब बहुत बेहतर हूँ। I've started keeping a calendar. अब मैं कैलेंडर रखता हूँ Okay, and I don't keep a calendar to see what I'm doing later. I keep a calendar so that I log what I'm doing during the day. और इसलिए नहीं कैलेंडर रखता ये देखने के लिए मैं आगे चल के क्या करने वाला हूँ, लेकिन दिन के प्रतिदिन मैं क्या करने वाला हूँ उन चीजों जो मैंने किया है, I write it down. जो मैं कर चुका हूँ वो चीजें मैं लिखता हूँ कैलेंडर पर, Only to see where my time is going. ताकि मुझे पता चले कि मेरा समय कहाँ जा रहा है। Because I want to honor God with my time and I want to put it to good use. क्योंकि मैं परमेश्वर को मेरे समय से आदर देना चाहता हूँ, उसका सही इस्तेमाल करना चाहता हूँ। So I want to ask you a question. तो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, How much time do we spend on the TV? टीवी पर हम कितना समय का उपयोग करते How much हैं time do we spend playing games? और गेम खेलने में कितना समय बिताते हैं। I know a lot of you guys play Candy Crush. और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग कैंडी क्रश खेलते हैं। Okay, how many of us spend a lot of time on social media? और कितने लोग हैं सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं? How many बहुत of- ज्यादा। How many of you know what Instagram and Facebook Reels are? और इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स क्या होती है, कितने लोगों को पता है? Show me, show me, show me. हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। All of you all waste your time, I know. आप सब टाइम वेस्ट करते हैं, मुझे पता है। I know because I've done it. मुझे पता है क्योंकि मैंने वो किया है। Okay, and trust me, Instagram and Facebook are so good, they will suck you into their rabbit hole. और इंस्टाग्राम और फेसबुक इतने चतुर है कि बस आपको वो खींच लेंगे, वो उनके You click on one Yes, ad. right. You click on one ad. Okay, if you want a bag, if you want to buy a bag, you click on one ad. Notice this. Okay, there is a study behind it. I know I do it because I'm in the media. You click on one ad. For the next 2 or 3 days, they will show you that same product that you want, 30 different bags, and you will keep scrolling and keep scrolling and keep scrolling and keep scrolling. और ऐसा है, अगर आपको एक बैग चाहिए, आपने एडवर्टाइज पर विज्ञापन आता है, वहां पर उस पर बटन दबाया तो 30 दिनों तक वो आपको तरह तरह के बैग, 3 दिनों तक नहीं, 30 लगातार वो आपको तरह तरह के बैग दिखाते जाएंगे और बस आपका समय उसमें बर्बाद होगा, आप बस बेवजह देखते रहेंगे। I made a mistake once. I clicked on a Mercedes Benz का ad. और एरल बोल रहे उन्होंने गलती की, एक बार मर्सिडीज बेंज के एड पे Now उन्होंने they क्लिक कर only दिया show me cars that are above 50 lakhs and I don't और have the अभी वो money. किसी गाड़ी बताते हैं एरल को 50 लाख के ऊपर की। Are we using our time to do that which God has called us? क्या हम हमारा समय उन चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं जिन चीजों के लिए परमेश्वर ने हमें Are we बुलाया है? running blindly in our pursuit of wealth and riches and are we neglecting the house of God? और क्या हम बस अंधेपन से भाग रहे हैं, पैसे कमाना है, धन कमाना है, इन चीजों के लिए, या हम परमेश्वर की चीजों में समय का इस्तेमाल कर रहे The हैं? best investment of our time is towards the call that God has placed over our life. और समय का सही निवेश यही है कि हम उन चीजों के लिए या उस बुलाहट के पीछे जाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए See, रखा है। you may not be called to be a preacher or a church leader or this killer evangelist. You may be called just to serve. देखिए, आपको इसलिए नहीं बुलाया हो शायद परमेश्वर ने कि आप प्रचारक बने, बड़े आराधना करने वाले बने या सुसमाचार बांटने वाले। कभी कभी आपको परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है कि आप सेवा करें। All of us are called to serve. हम सबको सेवा करने के लिए Whoever बुलाया है। you are, अब जो कोई भी है, right from the pastor to the apostle to the administrator, we all are called to serve. चाहे वो पासवान हो या प्रेरित हो या प्रबंधक हो, कोई भी हो, सबको सेवा करने के लिए बुलाया है। Are we spending our time wisely? क्या हम समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? Romans 10 verse 12 says each one of us will give an account of ourselves to God. और रोमियो के 10वें अध्याय वचन 12 में लिखा है कि हम सभी अपने आप का हिसाब जो है वो परमेश्वर को देंगे, This includes our time. और उसमें हमारा समय भी शामिल है। The time we have is God's gift to us. और जो समय हमें दिया गया है वो परमेश्वर की ओर से तोहफा है। We also use this time to work hard. और इस समय का हम इस्तेमाल करते हैं इसलिए भी कि हम मेहनत करें। Ecclesiastes 9 verse 10 tells us to do that. सबोपदेशक 9:10 में ये लिखा है। We also use this time for rest. और ये समय का इस्तेमाल हम आराम करने के लिए भी करते हैं। Sometimes in our pursuit of earning money, of taking care of the family, of growing up in our career, we forget to rest.
और कभी कभी इस तलाश में कि हमें करियर बनाना है, प्रसिद्ध होना है और तरह तरह की बातों में कलीसिया में हमें सेवा करना है, तो इसलिए हम आराम करना भूल जाते हैं। Sometimes even doing church activities, we forget to rest. और कभी कभी कलीसिया के काम करने में इतने हम मशगूल हो जाते हैं कि आराम करना भूल जाते हैं। Where is Sweeten when I need her? और She स्वीडन would have- किधर चले गए? She would have hugged me and given me a nice kiss on my cheek saying, well done. God rested and so should we. और परमेश्वर ने आराम किया, इसलिए हमें भी आराम करना चाहिए। That's important for us and our families. और ये हमारे लिए और हमारे परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है। Making good use of our time also means adding rest to our schedules. और समय का अच्छा इस्तेमाल करना, उसका अर्थ ये भी है कि हमारा जो शेड्यूल है उसमें हम आराम भी शामिल करें। You know what is the best time our body heals? आपको पता है कि हमारा शरीर चंगाई कौन से समय में सबसे उत्तम तरीके से पाता है? When we rest, when we sleep, that's when our body gets time to heal. और जब हम आराम करते हैं, हम सो जाते हैं, तब हमारा शरीर चंगा होता है। We feel refreshed when we rest. और हम ताजे हो जाते हैं जब हम आराम करते हैं। But it is about balance. लेकिन यहाँ पर संतुलन की बात है। You can't be so restful that you don't do anything, and you can't be doing so many things that you don't have time for rest. और आप इतना नहीं आराम कर सकते कि आप कुछ भी ना करें, या इतना आप नहीं करें कि आपको आराम करने का समय नहीं मिले। Eternity helps us to understand our limited time better. और अनंत काल हमारा जो सीमित समय है उसे बेहतर समझने में हमें मदद I करता want to है। ask you this: what do you want to be remembered by or as? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोग आपको कैसे या किस नाम से याद रखें आप What is the चाहते हैं? legacy you want to leave behind? और जब आप क्या छोड़ के जाना चाहते हैं जब आप चले जाएंगे? Do you want to be remembered as, oh, he was always busy? क्या चाहते हैं आप लोग आपको ऐसे याद करें, हाँ वो हमेशा व्यस्त रहता Oh, था, he just wasted his time. या ऐसा कहे हाँ उसने पूरा समय उसका बर्बाद Oh, he किया, just kept complaining the whole time. अरे वो तो हमेशा बस निंदा करता था, बुराई करता था। How do you want to be remembered? कैसे याद करें लोग आपको? Friends, let me tell you something. Whoever you are, no matter how insignificant you think you are, you're not just living life, you are leaving behind a legacy. भाइयों Okay. बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो कोई भी है, या आप अपने आप को कम महत्वपूर्ण समझे या जो कुछ भी समझे, आप जब जाएंगे तो कुछ छोड़कर आप जाने वाले हैं। You are leaving a legacy. आप कुछ बातें छोड़कर चले जाएंगे। Okay, and I have a word for you guys. As we were worshiping, I felt this. Okay, it is from Joel 2 verse 9 and 10, and it comes from that song. I just feel there are some of us over here who think that, no, I just don't make the cut. I'm not good enough. और योएल के दूसरे अध्याय Verse से 9 and 10. मुझे 9 और 10 से मुझे ये शब्द लगा जब हम आराधना कर रहे थे कि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं उतना योग्य नहीं हूँ। Okay, but then, you know, in Joel, the verse says, let the weakling say, I am strong. लेकिन आपको पता है योएल की किताब में ये लिखा है कि जो कमजोर है वो कहे कि मैं बलवंत हूँ। If you think you are weak, let me tell you, Jesus will give you strength. मैं आपको बताऊं, अगर आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं तो यीशु आपको बल देगा। Amit spoke about breaking the shackles. और अमित ने बताया कि उस जंजीरों को हमें तोड़ना है। You need to break the shackles. आपको उन जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा You need to go beyond what you're just thinking about yourself. और अपने आप के बारे में आप सोचते जो है उससे आगे आपको सोचना Let me पड़ेगा। tell you, you are here and you will leave a legacy. मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पर हैं और आप कुछ छोड़कर जाने वाले Okay, हैं। I'll quickly tell you a story about D.A. Carson's father. और D.A. कार्सन के पिता के बारे में एक कहानी जल्दी Okay, से I आपको don't know how many बताऊंगा। of you all know D.A. Carson, but D.A. Carson is one of the best speakers in the world. आप मुझे पता नहीं D.A. कार्सन को कितने लोग जानते हैं, लेकिन वो संसार के एकदम प्रसिद्ध उत्तम प्रचारक है He's a great mind. और उनका जो दिमाग है बहुत ही उत्तम He है knows so much about the Bible. और बाइबल के बारे में वो इतना कुछ जानते हैं। He's written commentary of the Bible in the Bible. He's और he's उसने that good. कमेंट्री लिखी है बाइबल के बारे में, बाइबल में वो Okay. इतने उत्तम है। Okay, he's someone whose works I read, I reference a lot.
और वो ऐसे कोई है जिनके बारे में, जिनके कामों के बारे में मैं बहुत पढ़ता हूँ। Franco also loves to read his material and listen to his words. और फ्रैंको को भी पसंद है कि उनकी जो बातें हैं उसे सुने या पढ़े। Okay, a lot of people will know D.A. Carson. और बहुत सारे लोग जो है वो डीए कार्सन को But जानेंगे, let me tell you about D.A. Carson's father. लेकिन डीए कार्सन के पिता के बारे में And मैं this is आपको what D.A. Carson बताना says चाहता about हूँ। him. और ये बात वो कहता है उसके बारे में। He says, I've traveled the world, I've spoken at so many places, I've written books that have gone the world. और वो कहते हैं कि मैंने इतना सफर किया है दुनिया भर में, इतने सारे जगहों पर मैं गया हूँ, इतनी किताबें मैंने लिखी है। But he says, I became me because लेकिन उन्होंने कहा लेकिन मैं बन गया क्योंकि, इसलिए, of my dad. मेरे पिता के कारण। Nobody knows D.A. Carson's father's name. और किसी को भी डीए कार्सन के पिता का नाम नहीं पता But है। D.A. Carson says this about his father. लेकिन डीए कार्सन अपने पिता के बारे में ये कहते He हैं। says, we were a small church of 45-50 people in Canada. उन्होंने कहा हम कनाडा में हम 45-50 इतने ही जन थे, एक छोटी सी It कलीसिया never थी। grew more beyond that. और वो उससे ज्यादा कभी बड़ी नहीं वो कलीसिया। Okay. But लेकिन my dad would get up every day at 4 in the morning. मेरे पिता हर दिन सुबह 4 बजे उठ जाते थे। He would get on his knees and pray. अपने घुटनों पर आते थे और प्रार्थना On करते थे। every Sunday till the day he retired from the church, he would be the first one there laying down the chairs. और हर रविवार जब तक कि वो रिटायर नहीं हो गए, वो पहले ऐसे होते थे, कलीसिया में आकर कुर्सियां लगाते He थे would minister to each and every one. और वो हर एक की सेवकाई करते थे। He would be available for people on all times. और हर दिन हर समय लोगों के लिए उपलब्ध रहते थे। The church never grew beyond 50. और कलीसिया 50 से आगे कभी नहीं बढ़ी। What do you think? Do you think D.A. Carson's dad was a failure? तो आपको क्या लगता है, क्या डीए कार्सन के पिता एक हारे हुए व्यक्ति थे? Huh? क्या आपको ऐसा लगता है? D.A. Carson says, I saw my dad do that and I wanted to do something for the kingdom of और God. डीए कार्सन ने कहा कि मैंने मेरे पिता को वो करते हुए देखा और मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना You चाहता see, था। the legacy that D.A. Carson's father left behind was not seen by the entire world. It was seen by one person, his son. But that legacy is now blessing millions. तो देख रहे जो You see that? विरासत है डीए कार्सन के पिता ने जो छोड़ दी, वो दुनिया ने नहीं देखी, लेकिन उस एक व्यक्ति ने देखी और उसका प्रभाव दुनिया पर हुआ है। You are leaving a legacy right now. आप एक विरासत छोड़ के जा रहे हैं अभी, Pursue a legacy. और उस विरासत की खोज में लगे रहे। Don't live life for the sake of it. और जीवन बस जीना है, इसके लिए मत जिए। What is the kind of legacy you want to leave? और कैसी विरासत आप छोड़ के जाना 1 चाहते हैं? Corinthians 3 verse 10 to 15 एक कोरिन्थियों के 3 अध्याय वचन 10 से 15। is the legacy that we are leaving going to pass the test of fire? और वो विरासत ये है जो आग की परीक्षा से गुजरने वाली है। Will it come through or will it be destroyed? तो उसमें जीत होगी या विनाश होगा? What we give our time to now will affect the rest of our life. और जिस चीज के लिए हम अभी समय देते हैं, उसका असर जीवन भर हम पर होने वाला है। It not only affects the rest of our life, it also affects our legacy and it will affect eternity to follow. और वो केवल हमारे जीवन के लिए नहीं, हमारी विरासत पर भी उस पर असर होगा और अनंत काल पर भी असर होगा। Psalm 90 verse 12 says, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. और भजन संगीता 90:12 में लिखा है, हमारे दिन गिनने के लिए हमें सिखा दो ताकि हमें बुद्धि का हृदय मिल जाए। Wisdom is the wellspring from which one can find success. और बुद्धि से ही जो है कामयाबी निकल कर आती है या कामयाबी प्राप्त होती है। You can't be successful if you don't have wisdom. आप कामयाब नहीं हो सकते यदि आपके पास बुद्धि नहीं है। And even if one becomes successful without wisdom, they cannot remain successful without it. और अगर कोई बुद्धि के बगैर कामयाब हो भी जाएगा तो ज्यादा समय के लिए कामयाब नहीं रह सकता है। How many of us want to be successful? हम में से कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? How many of us want to be successful? Come on, quickly. Everyone, हम में से Pursue- कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? pursue wisdom. तो आप बुद्धि की खोज करें, बुद्धि के पीछे जाएं। Do you want wisdom? क्या आपको बुद्धि चाहिए? You want wisdom? Yes. हाँ, You can't buy it on Amazon. तो अमेज़न पे नहीं खरीद सकते हैं Okay, you can't buy it in Mangalore store. और मैंगलोर स्टोर में भी नहीं मिलेगा। You get wisdom by using time wisely.
आपको बुद्धि मिलेगी जब आप समय का बुद्धिमानी से इस्तेमाल That करेंगे। is what the Bible says. ये बाइबल कहता है। When we look at time from the perspective of eternity, we use it wisely. Okay? तो जब हम अनंत काल की दृष्टि से, नजरिए से समय को देखते हैं तो हम उसे बुद्धिमानी से समय का Okay. इस्तेमाल करेंगे। Point number 3. तीसरी बात, We live a forward looking life. तो हम आगे के देखते हुए हम जीवन जीते हैं। Okay? Living a life of eternity means looking at what is to come rather than just what is. और अनंत काल की रोशनी में जीवन जीना का अर्थ ये है कि जो चीजें आने वाली है हम उसकी ओर देखते हैं, ना कि जो चीजें Yes, हैं। eternity for us started the day we accepted Jesus as हाँ, our Lord अनंत and काल Savior. हमारे लिए शुरू हुआ उस दिन जब हमने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, उसी दिन। But we will see the full benefits of it when we go to be with Him in heaven. लेकिन उसका पूरा लाभ हम तब देखेंगे जब हम उसके साथ स्वर्ग में जाने के लिए होंगे। Whatever benefits of eternity we see on this planet right now, whatever we are seeing now is just a trailer. और उसका अनंत काल का लाभ जो हम पृथ्वी पर अभी देख रहे हैं वो सिर्फ एक ट्रेलर है। Okay, as Christians, we look forward towards that which God has called us to. और मसीह होने के नाते हम उन चीजों की बाट जोते हैं या उस चीजों के लिए रुके हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। Paul mentions a prize. और पौलुस जो है वो एक पुरस्कार के बारे में Okay, कहता and है। Paul mentions a prize in Philippians 3 verse 12 to 14. और फिलिपियो के 3 अध्याय 12 से 14 में भी वो पुरस्कार के बारे में Friends, कहता there is है। a prize waiting for us in heaven. दोस्तों, हमारे लिए स्वर्ग में एक पुरस्कार रुका है। There are many rewards. कई पुरस्कार हैं। I won't get into the details, but it is something you and I have, we have something to look forward to. मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसी चीज है जिसके लिए आपको और मुझे अपेक्षा रखनी है। There is a reward for persevering under trial. और परीक्षा में भी आगे लगे रहने के लिए भी एक पुरस्कार There is रखा a है। reward for seeking Jesus. और यीशु की खोज करने के लिए भी एक पुरस्कार है। There is a reward for praying. प्रार्थना करने के लिए भी There is a पुरस्कार है। reward for helping the poor. और गरीब की मदद करने के लिए And भी it goes पुरस्कार on है। and on and on. I love getting gifts and I cannot wait to see what my reward is. और बस ऐसी कई पुरस्कार है और मुझे पुरस्कार पाना बहुत पसंद है और मैं रुका हूँ कि मेरा पुरस्कार मैं कब पाऊंगा। The life that you and I live जो जीवन आप और मैं जीते हैं, of honoring God, परमेश्वर को आदर करते हुए, of saying no when it is very difficult to say no. और ना कहना जब बहुत कठिन है ना कहना। Okay, the life that we live of when we give, और ऐसा जीवन जब हम देते हैं, when it hurts to give. जब हमें दुख पहुंचता है देने के लिए। No one knows that, कोई नहीं जानता है, but He notices it. लेकिन वो उस पर गौर करता है And there is a reward for it. और उसके लिए एक पुरस्कार रखा है। So every time you've said no to yourself, you've denied yourself, every time you've given out of your means, even when you didn't have, God has seen that. तो हर बार जब आपने अपने आप को नकारा है, ना कहा है, जब आपके पास नहीं रहा तब भी आपने दिया है, तो परमेश्वर ने उसे देखा है। The Bible says what our Father sees us doing in secret, He will reward us for that. और बाइबल कहता है कि गुप्त में जो हमारा पिता हमें करते हुए देखता है उसे वो पुरस्कारित करेगा So जरूर। continue to do that. तो आप वो करते रहे। Okay, you may give few thousands, maybe a few lakhs. What you will get is something that even money cannot compare with. आप Okay? शायद कुछ हजार या कुछ लाख देंगे, लेकिन उसके बदले में आपको जो मिलेगा पैसे की उसके साथ कोई तुलना नहीं है। So there are no rewards. So rewards are not only for eternal life, there are rewards even here on this तो planet. केवल अनंत काल के लिए पुरस्कार है ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी पर भी पुरस्कार रखे हैं। Okay, Deuteronomy 5 verse 33, I won't read, but it says, if you obey all that the Lord has commanded you, you will live and prosper and prolong your days. और व्यवस्था विवरण की किताब में लिखा है कि अगर जो परमेश्वर ने तुम्हें आज्ञा दी है उसे तुम उस मार्ग पर चलोगे तो तुम लंबा जीवन जियोगे इस पृथ्वी पर। How many of us want to live long? तो कौन लंबा जीवन जीना चाहता है इस पृथ्वी पर? Dear Lord Jesus, just see the 10 hands, only they will live long. That is not. और 10 ही हाथ ऊपर आए हैं, वो ही खाली। Okay, if you obey the Lord, you will live long. और अगर आप परमेश्वर की आज्ञा मानोगे तो आप लंबा जीवन जियोगे। Okay, Galatians 6 verse 9 says, let us not become weary in doing good,
For at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. और गलातियों के 6 अध्याय वचन 9 में लिखा है, हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। Contrary to what the world tells you and me, brothers and sisters, please, and I urge you to continue to do good. और चाहे संसार हमें जो कुछ भी क्यों ना कहता हो, भाई और बहनों, मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, आप भले काम करते रहे। Every opportunity we get, do good. जो भी मौका हमें मिलता है उसमें हमें भले काम करना है। People may think it is foolish लोग सोचेंगे ये मूर्खता है, because they are looking for instant rewards. क्योंकि वो तुरंत पुरस्कार मिले ऐसा But सोचते we are हैं। looking towards that, the rewards that God has in store for us. लेकिन Okay? हम उसकी ओर देख रहे हैं, वो पुरस्कार जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा Okay, our है। investment of time, money, relationships, it's not for the short term, but it is for eternity to come. और हमारा जो निवेश है पैसे को लेकर, रिश्तों को लेकर, समय को लेकर, वो बस कुछ समय के लिए नहीं है, लेकिन वो अनंत काल के लिए है। And I'm telling you, God will show you the benefits of this, of what you've done even in this lifetime. और मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर आपको, आपने जो किया है इस जीवन में, उसके लाभ इस जीवन में, इस पृथ्वी पर I'm दिखाएगा। telling you, I have seen it. I am a testimony of it and you will see it too. और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने देखा है, मैं उसका गवाह हूं, और आप भी उसका अनुभव करेंगे। Okay. And we do not do good because we find gain in it. और हम इसलिए भला नहीं करते, भलाई नहीं करते क्योंकि हमें उससे कुछ लाभ होता है। Doing good rarely has immediate gain. और भलाई करने से कभी ऐसा हुआ होगा शायद कि तुरंत आपको लाभ मिले। Okay, probably later in life you may see it. शायद आगे चलकर जीवन में आप But देखेंगे। we do good because He has asked us to do good. लेकिन हम इसलिए भले काम करते हैं क्योंकि उसने हमें कहा है करने के लिए। Okay, no matter what, our reward is waiting up there. चाहे हमारे लिए जो कोई पुरस्कार वहां पर रखा है। Okay, I've got 2 more points, but I won't be able to और cover 2 it. और पॉइंट है, लेकिन वो नहीं बांट पाऊंगा, So, yeah, I'll just stop there. तो यहाँ पर रुक जाता हूँ। Okay, I'll just say the next point is living in the life of eternity means we have a fresh perspective on present suffering. और अनंत काल की रोशनी में जीवन जीना मतलब अभी हाल ही में जो पीड़ा है उसका एक ताजा नजरिया हमारा हो। Okay, and the next one, the last one is that और we live a आखिरी life है of mission. कि हम मिशन का जीवन जिए। Okay, so I'll just share this. तो मिशन को लेकर मैं बांटूंगा। When we live in the light of eternity, we develop an urgent sense of mission. और जब हम अनंत काल की रोशनी में जीवन जीते हैं तो एक जैसे कि तात्काल हमें मिशन के लिए जीवन जीना है, ऐसा एहसास What are होता we है। doing with our lives that will outlive the grave? और हमारे जीवन के साथ हम क्या कर रहे हैं जो हम कब्र के बाद भी छोड़कर And जाने this वाले is a हैं। very important question. और ये महत्वपूर्ण प्रश्न Okay, है। I think Franco touched upon this when he was doing the bread and wine. और मुझे लगता है फ्रैंको ने इस पर बात की जब दाखरस और रोटी Okay. तोड़ी जा रही थी। Just touch the person next to you and do this. Just wake और him up. अपने बाजू में जो व्यक्ति है उसे ऐसा कीजिए और उठाइए उसे। Okay. This is a very important question. ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। Is our life like everyone else's? Are you hearing this? Is our life like everyone else's except for the fact that we know we are going to heaven? क्या हमारा जीवन दूसरों की तरह है, लेकिन एक ये हकीकत उसमें है कि हम जानते हैं कि हम स्वर्ग जा रहे हैं। Okay. Are we still living like people of the world क्या अभी भी हम संसार के लोगों की तरह जीवन जी रहे हैं? because we know that heaven is sorted for us? क्योंकि हम जानते हैं, हाँ मेरे लिए स्वर्ग तो है ही। A very loaded question. ये बहुत ही भारी प्रश्न है। Okay, and this is something you have to ask yourself day in and day out, week in and week out. और ये प्रश्न है ऐसा कि आपको हर दिन प्रतिदिन आपको ये अपने आप से पूछना है। The only thing that outlasts the grave is people. और कब्र के बाद भी या कब्र से परे भी एक चीज रह जाती है और वो है लोग। Positions, possessions, status, pleasure, house, car, career, nothing outlasts the grave. Only people, only you and I outlast the grave. और आपका क्या स्तर है, संपत्ति या स्टेटस या गाड़ी या घर, ये चीजें नहीं रह जाती है, लेकिन एक ही चीज रह जाती है, वो है लोग, आप और मैं। You and I, we need to orient our lives around people. और आपको और मुझे अपना जीवन शानदार बनाना है लोगों के आसपास। We need to feed the hungry. हमें जो भूखे हैं उन्हें खिलाना है। We need to minister to those in need.
और जो लोगों को जरूरत है उनकी सेवा करना है, disciple people, लोगों को चेले बनाना है and point people to Christ. और लोगों को यीशु के पास ले आना है। And that is why we are starting the training next week. और इसलिए अगले हफ्ते से ही हम प्रशिक्षण की So please, शुरुआत कर रहे हैं। please make most of it. तो जितना हो सके आप इसका फायदा ले Okay, लीजिए। we need to be more mission minded. और हमें ज्यादा मिशन को लेकर सोचना है Okay, I need to be more mission minded. और मुझे भी मिशन को लेकर सोचना है, Okay, because the only thing that's going to outlast the grave is people. क्योंकि कब्र से परे भी एक चीज ही रह जाएगी, वो है लोग। You want an eternal investment, it is people. और आपको अनंत काल का निवेश चाहिए तो वो है लोग। Okay, let's not lose our eternal perspective. और हमारा जो अनंत काल की दृष्टिकोण है उसे हम खोए नहीं। Okay, so the eternity we are going to shapes our identity. तो जिस अनंत काल की ओर हम जा रहे हैं वो हमारी पहचान को आकार देता है। Okay, we all have our histories, we all have our baggages. और हमारे सबके इतिहास है और हम सबके बोझ रहे हैं। But like Paul, let's forget what is behind. लेकिन पौलुस की तरह जो पिछला है उसे भूल जाइए Let's train ahead towards what God has called us. और उस चीज के लिए आगे बढ़े जो परमेश्वर ने हमारे लिए There are रखी है। rewards in store for us. और हमारे लिए पुरस्कार रखे गए What हैं। if we mess up? और अगर हमने गड़बड़ी कर दी तो क्या? Yes, you will mess up. हाँ, हम गड़बड़ी करेंगे, Get yourself right with God. लेकिन परमेश्वर के साथ आप ठीक हो जाइए। If you mess up again, get yourself right with God again. और फिर आपने गलती की तो फिर परमेश्वर के पास जाइए और बातों को ठीक And कीजिए। I'm going to end with this verse. और इस वचन के साथ मैं समाप्त One करूंगा। of my biggest fears in life was, what if I fall away? और मेरा भी जो डर था जीवन में, सबसे बड़ा डर वो यही था कि क्या हुआ अगर मैं भी हार गया। Okay, but let me tell you, just like in salvation, it had nothing to do with us. Okay, in the same way, Jesus, okay, he protects our eternal inheritance. और जैसे उद्धार में भी हमारा काम नहीं था लेकिन यीशु का काम था, वैसे ही यीशु ही है जो हमारी अनंत काल की विरासत को सुरक्षित रखता है। Jude 1 verse 24 to 25. Okay. योहता का पहला अध्याय वचन 24 से And 25। Franco showed me this verse when I had gone to him with this question. और जब ये प्रश्न लेकर मैं फ्रैंको के पास गया था तब उन्होंने ये वचन मुझे बताया। To him who is able to keep you from stumbling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. To him who is able to keep you from stumbling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy. Amen. आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मग्न और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्भुत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार और हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन। He is able to keep you वो तुम्हें संभालेगा and he will present us